السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں زرمش ناول۔ آج آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لائی ہوں جس میں شرارتیں بھی ہیں، ضد بھی، ہنسی مذاق بھی اور دل کو چھو لینے والی محبت بھی۔ کبھی کبھی جس شخص سے ہم سب سے زیادہ لڑتے ہیں، قسمت اس کو ہماری زندگی کا ہم سفر بنا دیتی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں دشمنی سے محبت تک کے خوبصورت سفر پر مبنی ناول۔ تو پھر اب بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ ایشو آپی، پلیز مجھے فون دے دیں، بھیا باہر کھڑے ہیں، انہیں اندر آنے دیں، وہ غصے سے پاگل ہو جائیں گے۔ رینم نے روحانسی آواز میں عشا سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، مگر عشا نے پھرتی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ ہرگز نہیں، جتنا اس بندے نے مجھے تپایا ہے نا، آج تو یہ ساری رات باہر سڑک پر مچھر مارے گا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ یہ اتنا بڑا ہیرو بنتا ہے۔ عشا نے بڑی بے نیازی سے موبائل صوفے پر اچھالا اور ہاتھ میں پکڑا سیب بڑے مزے سے چبانے لگی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، جب پورے گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور لاؤنج میں کھڑی عشا بڑے سکون سے اپنا سیب کھا رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑی رینم کی جان نکلی جا رہی تھی، کیونکہ باہر مین گیٹ پر اس کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی نہال شاہ پچھلے آدھے گھنٹے سے خوار ہو رہا تھا۔ آپ پلیز میری بات مانے، بھیا کا میسج آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے گیٹ کھولو ورنہ بابا جاگ جائیں گے۔ رینم نے ایک بار پھر سے منت کی، مگر عشا نے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ جاگنے دو ماموں کو، میں تو کہتی ہوں کہ آج ماموں بھی دیکھ لیں کہ ان کا یہ لاڈلا رات کے 2 بجے تک کہاں آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے۔ کھڑا رہے تھوڑی دیر دروازے پر، تمہارا بھیا، اسے بھی تو پتہ چلے کہ گرمی اور حبس میں بند ہونے کا کیا احساس ہوتا ہے۔ عشا کی آنکھوں میں بدلہ لینے والی چمک تھی، وہ کسی بھی صورت آج نہال کو آسانی سے اندر آنے دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ آج رات شہر کی سب سے بڑی بائک ریس تھی، جس میں ہمیشہ کی طرح جیت نہال شاہ کے نام ہوئی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے ریس ٹریک پر ہر طرف ہیوی بائکس کی کان پھاڑ دینے والی آواز گونجی تھی، اور تماشائیوں کا ایک ہجوم تھا جو بس ایک ہی نام پکار رہا تھا، نہال شاہ، نہال شاہ۔ اپنی سیاہ چمکدار ہیوی بائک پر کھڑا وہ کسی سپر ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس اس کے چہرے پر غرور اور ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ تھی، جو اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس ٹریک پر اسے دھول چٹانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور ریس شروع ہونے کا اشارہ ملتے ہی اس کی بائک کسی طوفان کی طرح ہواؤں کو چیرتی سب سے آگے نکل گئی تھی۔ پیچھے رہ جانے والے بس اس کی بائک سے اڑنے والی دھول ہی دیکھ سکے تھے۔ اور پھر جب اس نے شان سے فنش لائن پار کی تو اس کے دوستوں نے خوشی کے نعرے لگاتے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات میرے یار، آج تو پارٹی بنتی ہے ہم سب کے نام۔ اس کی ایک قریبی دوست نے زور سے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، جس پر نہال نے فخر سے اپنے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے اور مسکرایا تھا۔ پارٹی تو بنتی ہے اور بہت شاندار بنتی ہے۔ آج اس انعام کی ساری رقم ہم کلب میں اڑائیں گے، چلو دوستو، آج رات ہماری ہے۔ اس کے اعلان پر سب خوشی سے جھوم اٹھے تھے، اور کلب کا ماحول فل ٹائم عیاشی اور مستی سے بھرپور تھا، جہاں وہ اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے وقت کا حساب ہی بھول گیا تھا۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو رات کے 2 بج چکے تھے، سڑکیں بالکل سنسان تھی۔ وہ بڑی ریلیکس اور شاہانہ انداز میں اپنے بائک کو گلی میں موڑتا اپنے گھر کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اسے پوری تسلی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن رینم جاگ رہی ہوگی، جو ہمیشہ اس کی پروٹیکٹر بن کر اپنے سخت گیر بابا کی ڈانٹ سے اسے بچا لیتی تھی۔ اس نے سکون سے بائک کا انجن بند کیا اور جیب سے موبائل نکال کر رینم کا نمبر ملایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایک ہی بیل پر دروازہ کھول دے گی، مگر آج کی رات اس کے لیے کوئی عام رات نہیں تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ گھر کے اندر کے حالات بالکل بدل چکے ہیں، اور اس کی پروٹیکٹر بہن آج گھر کی سب سے بڑی ڈان عشا کے ہاتھ چڑھی ہوئی ہے۔ عشا حال ہی میں اپنے BA کے پیپر سے فارغ ہو کر چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے ماموں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ ایک فل ٹائم مستی کرنے والی زندہ دل اور نڈر لڑکی تھی، اور آتے ہی اس نے پورے گھر کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ نانو تو ویسے ہی اس پر صدقے واری جاتی تھی، اس کی ہر الٹی سیدھی حرکت پر نانو کا سایہ ہوتا تھا، اس لیے اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ سارا دن وہ رینم کے ساتھ مل کر پورے گھر میں ادم مچاتی، کب کچن میں نت نئے تجربے کرتے ہوئے برتنوں کا پیرا غرق کرتی،
اور پھر ممانی کی ڈانٹ کھا کر بھی ڈٹائی سے ہنس دیتی تھی۔ لیکن ان سب کے علاوہ اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ممانی کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے نہال شاہ کو تگنی کا ناچ نچانا تھا۔ نہال اور عشا دونوں کزن تھے، لیکن ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک اگر آگ تھا تو دوسرا بھی پورا آتش فشاں تھا۔ بات بات پر ان کی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، اور کل ہی نہال نے اپنی کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے عشا کو پورے 2 گھنٹے تک اسٹور روم میں بند کر دیا تھا، اور وہ ممانی کے کہنے پر اندر سے کچھ پرانا سامان نکالنے گئی تھی۔ پر نہال نے موقع پاتے ہی چپکے سے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ نہال، دروازہ کھولو، یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ عشا اندر گرمی اور حبس میں دروازہ پیٹتی رہی، اور وہ باہر کھڑا اس کی بے بسی پر کہکیاں لگاتا رہا۔ آج عشا نے اسی بے عزتی کا بدلہ لینے کی قسم کھا رکھی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب نہال خود اس کے رحم و کرم پر تھا۔ باہر کھڑے نہال کا غصہ اور گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سڑک پر کھڑا تھا، مچھروں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ اسے غصے سے دانت پیستے ایک بار پھر کال ملائی، جو رینم کی بجائے سیدھی عشا نے اٹھا لی تھی۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے کیا، جو اتنی دیر سے گیٹ نہیں کھول رہی ہو؟ میں یہاں کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھے جلدی آؤ اور دروازہ کھولو، ورنہ میں گیٹ توڑ دوں گا۔ نہال غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا غضب تھا کہ اگر رینم ہوتی تو ڈر کے مارے فون گرا دیتی۔ مگر دوسری طرف عشا کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی گونجی۔ اوہو مسٹر نہال شاہ، بائک ریسلر، اتنی جلدی کیا ہوا؟ ابھی تو رات جوان ہے، تھوڑی دیر سڑک کی ٹھنڈی ہوائیں کھائے اور مچھروں سے دوستی کرے۔ ویسے دروازہ توڑنے والا آئیڈیا بھی برا نہیں ہے، عشا نے بڑے مزے سے چبا چبا کر کہا۔ اسے نہال کی بے بسی پر بہت سکون مل رہا تھا۔ چڑیل، تم ہو فون پر؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ کوئی کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ نہال کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی اتر آئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ دیوار پھاند کر اندر جائے اور اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ بالکل میں ہوں، اور آج کا گیٹ پاس میرے پاس ہے، جو تمہیں کسی صورت نہیں ملے گا۔ کل تم نے مجھے اسٹور میں بند کیا تھا نا، اب تم پورے 2 گھنٹے کا ہرجانہ پورا کرو۔ عشا نے دو ٹوک اور دبنگ انداز میں جنگ چھیڑتی تھی۔ عشا، دماغ خراب مت کرو میرا، ورنہ میں اندر آ کر تمہارا وہ حال کرنا ہے نا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ چپ چاپ گیٹ کھول دو، بابا جاگ گئے تو بہت برا تماشا بن جائے گا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ نہال نے مٹھیاں بیچتے تھوڑا نرم لہجہ کرنے کی کوشش کی، مگر عشا کہاں ہار ماننے والی تھی۔ حساب تو آج ہی برابر ہوگا مسٹر نہال شاہ، اور پورے 2 گھنٹے بعد یہ گیٹ کھلے گا۔ تب تک اپنی اس کھٹارا ہیوی بائک کے ساتھ گپے مارو، انجوائے۔ یہ کہہ کر عشا نے فون سیدھا کاٹ دیا تھا۔ باہر نہال نے غصے سے اپنی بائک کے ٹائر پر زوردار لات ماری تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گلی میں ٹہلنے لگا تھا۔ اس چڑیل کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے گھر میں آ کر مجھ پر ہی روب چلا رہی ہے۔ اس کا تو میں کل ہی اچھے سے بندوبست کرتا ہوں، لگتا ہے پچھلی ڈوز بھول گئی ہے۔ وہ غصے سے خود کلامی کرتا ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا غصہ کہاں نکالے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور باہر کھڑے نکھال کے لیے ایک ایک پل عذاب بن گیا تھا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی میں صرف دور بھونکتے کتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کبھی بائک پر بیٹھتا، کبھی اٹھ کر چلنے لگتا۔ اس کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عشا کو سبق سکھانے کی کئی خطرناک منصوبے بنا لیے تھے۔ 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، اور رینم کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ بھابھی پلیز، اب تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، بھائی باہر اکیلے ہیں، اگر محلے میں کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ بابا کی عزت کا سوال ہے، پلیز اب تو گیٹ کھول دیں۔ رینم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی۔ عشا نے رینم کے آنسو دیکھے تو اس کا دل تھوڑا سا پسیج گیا۔ وہ رینم سے بہت پیار کرتی تھی، اور اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں واقعی پورے 3:45 بج رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں جا کر کھولتی ہوں گیٹ۔ ویسے بھی اس مغرور انسان کو کافی مت ماری گئی ہوگی، آج کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ عشا نے اپنا جوس کا گلاس میز پر رکھا، اور رینم کو چپ کرواتے فاتحانہ انداز میں مین گیٹ کی جانب بڑھی۔ باہر نہال اب مایوس ہو کر بائک پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ جب اسے گیٹ کے لاک کھلنے کی آواز آئی، اسے فوراً سے سر اٹھایا۔ عشا نے گیٹ تھوڑا سا کھولا اور جھانکا۔ نہال کی حالت دیکھ کر اسے اندر ہی اندر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور چہرے پر غصے اور تھکاوٹ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اندر آ جاؤ بادشاہ سلامت،
ورنہ मैंने फिर से गेट बंद कर देना है। ईशा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। निहाल ने उसे ऐसी काटदार नजरों से देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसने कुछ बोले बगैर खामोशी से अपनी हैवी बाइक को धक्का लगाया और उसे अंदर ले आया, क्योंकि वो बाइक स्टार्ट नहीं कर सकता था, वरना पूरे घर की नींद उड़ जाती। उसने बाइक को पोर्च में खड़ा किया और मुड़कर ईशा को देखा, जो बड़े फख्र से उसे देख रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार का सर कर लिया। निहाल चंद कदम चलकर बिल्कुल उसके सामने आकर रुका। उन दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का ही फासला रह गया था। जितना तुमने आज मुझे ख्वार किया है ना ईशा, इसकी कीमत तुम्हें बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। निहाल ने झुककर उसकी आंखों में देखते इंतहाई धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा। उन दोनों की नजरों के टकराव में चंगारी थी, जिसे फिलहाल वो दोनों ही नजरअंदाज कर रहे थे। ओह, मैं तो डर गई। ईशा ने जरा भी घबराए बगैर सीने पर हाथ बांधे और मुस्कुराई और मुड़कर लाउंज की जानिब चले गए। हालशा गुस्से से मुठियां बीचता उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका खून खौल रहा था। वो जानता था कि ये जंग अब बाकायदा शुरू हो चुकी है और वो किसी कीमत पर उस लड़की से हार मानने वाला नहीं था। उसने दिल ही दिल में ईशा के लिए एक ऐसा प्लान सोच लिया था जो अगले दिन उसे दिन में तारे दिखाने देने वाला था। वो गुस्से से पैर पटकता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि रनम ने शुक्र का सांस लिया कि आज की रात बगैर किसी हंगामे के गुजर गई थी। निहाल, जल्दी जाओ और ईशा को मार्केट से ना पिक कर दो। ड्राइवर तुम्हारी मामा को लेकर उनकी दोस्त की तरफ गया हुआ है। वो कब से अकेली धूप में खड़ी इंतजार कर रही है। चलो पहुंचो वहां। लाउंज में दाखिल होते ही शराज साहिब की गर्जदार आवाज ने निहाल शाह के कदम रोके थे, जो भी अभी अपनी बाइक की चाबियां हाथ में घुमाता बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। और अपने बाबा का हुक्म सुनकर उसके होंठों पर बेहद शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिन तो सुकून से गुजर गए थे और ईशा से उसे अपना बदला चुकाने का कोई खास मौका नहीं मिल सका था। लेकिन अब खुद शिकार चलकर उसके जाल में फंसने वाला था। उसने फौरन से चाबियां हवा में उछालकर वापस कैच की और सर हिलाता हुआ बाहर की जानिब निकल गया। उसे मालूम था कि जून की चिलचिलाती धूप में मार्केट के बाहर खड़े होकर उस चुड़ैल का क्या हाल हो रहा होगा। वो इस हालत में उसका पूरा पूरा फायदा उठाने के मूड में था। दूसरी तरफ मार्केट के बाहर खड़ी ईशा का गर्मी और हवस से वाकई में बुरा हाल हो रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से हवा झलती हुई सड़क के दूसरी तरफ देख रही थी कि शायद ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाए, मगर दूर दूर तक कोई मानूस गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उसने गुस्से से पांव पटकते मोबाइल निकाला ही था कि अचानक इंतहाई शोर मचाती स्याह रंग की हैवी बाइक बिल्कुल उसके कदमों के पास आकर रुकी, जिसकी कान फाड़ देने वाली आवाज से ईशा 2 कदम पीछे हटी थी। बाइक पर सवार शख्स ने सर पर मौजूद हेलमेट का शीशा ऊपर किया तो अंदर से निहाल शाह का मुस्कुराता हुआ मगरूर चेहरा बरामद हुआ, जिसे देखकर ईशा के माथे पर गुस्से से अनगिनत बल पड़ गए थे। वो पहले ही गर्मी से तप रही थी और अब उसे देखकर उसका पारा मजीद हाई हो गया था। तुम ड्राइवर क्यों नहीं आया? उफ, ये क्या खटारा लाए हो तुम? मैं नहीं बैठती इस पर। जाओ जाकर गाड़ी लेकर आओ। मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे ही गर्मी से मेरी जान निकल रही है। ईशा ने बाइक को हकारत से देखते हुए अपना माथा रगड़ा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था, जैसे उसे निहाल की शानदार बाइक पर बैठने में भी अपनी तौहीन महसूस हो रही हो। मर्जी है तुम्हारी, शौक से पैदल जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी मुसीबत को अपने पीछे बिठाने का। मैं तो बाबा के कहने पर आया था, अब तुम जानो और तुम्हारे नखरे। नेहाल ने भी कंधे उचकाते हुए इंतहाई बेनियाजी से जवाब दिया और बाइक का एक्सीलेटर जोर से घुमाया, जिससे एक बार फिर कानों को फाड़ देने वाली आवाज पैदा हुई और वो बाइक को आगे बढ़ाने लगा। अरे रुक जाओ, मैंने कब कहा कि मैं पैदल जाऊंगी? ईशा ने जल्दी से आगे बढ़कर बाइक के पीछे हिस्से को पकड़ा था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि इडियट इंसान वाकई उसे इसी गर्मी में सड़क पर तनहा छोड़कर चला जाएगा और वो इस हालत में पैदल चलने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। इसलिए उसने दिल में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा और कुड़ते हुए बाइक की पिछली सीट पर टिक कर बैठ गई और अपने कपड़ों को समेटने लगी। तोबा, तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि मेरी बेचारी बाइक का टायर ही जमीन में दंस गया है। जरा कम खाया करो। नेहाल ने हेलमेट के शीशे से पीछे देखते हुए तंज का तीर चलाया, जिस पर ईशा ने उसे पीछे से एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश की और निहाल हंस दिया। ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बाइक चलाओ, वरना मैंने पीछे से ना तुम्हारा गला दबा देना। चलो जल्दी से घर लेकर चलो मुझे।
ईशा ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात मुकम्मल होते ही निहाल के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट फैली थी और उसने जानबूझकर बाइक को पहले गियर में डालकर ऐसा जोरदार झटका दिया कि ईशा के दिल दहला देने वाली चीख पूरे सड़क पर गूंजी थी और वो बेसाख्ता आगे की तरफ गिरती मजबूती से निहाल की शर्ट को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। उसके इस कदर करीब आने से निहाल के अंदर एक अजीब सी और मीठी सी हलचल मची थी। घर जाना है मैंने, अल्लाह के पास नहीं। आराम से चलाओ वरना मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। ईशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसके हाथ सख्ती से निहाल के कंधों को जकड़े हुए थे, जबकि निहाल को इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल रहा था। उसने ईशा की धमकी को हवा में उड़ाते बाइक की स्पीड इतनी तेज कर दी थी कि वो तूफान मेल बनी हुई सड़क पर मौजूद बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ती जा रही थी और वो आगे तेज थप्पड़ों से ईशा के दुपट्टे का पल्लू उड़ रहा था और उसकी सफाई से बनाए गए बाल अब बुरी तरह से बिखर कर एक घोंसले की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। वो बार बार निहाल से की पीठ पर मुक्के मार रही थी कि बाइक की स्पीड कम करे, मगर निहाल तो जैसे आज उसे सारी अजियत का मजा चखाने का फैसला कर चुका था। बाइक हवा से बातें कर रही थी और ईशा की सांसें सीने में अटकी हुई थी। जब तक बाइक घर के बोझ में आकर रुकी, ईशा का हुलिया मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। उसके बाल किसी आसेबजदा लड़की की तरह चेहरे पर बिखरे हुए थे, आंखों में काजल हल्का सा फैल चुका था और टांगे डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही बाइक रुकी और वो लड़खड़ाती नीचे उतरी और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। वाह क्या लग रही हो कसम से। वो लगता है ना पुराने वक्तों में ड्रामा एनक वाला जिन, उसमें वो बिलबतोड़ी आती थी ना, बिल्कुल वैसी लग रही हो, बिलबतोड़ी और नासा चोरी। निहाल ने बाइक के स्टैंड को पांव से लगाते हुए जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और ईशा की उस तबाह हाल शक्ल की एक जबरदस्ती तस्वीर खींच ली थी। उसके कहके पूरे पोर्च में गूंज रहे थे और वो अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। ईशा ने गुस्से से अपने बिखरे हुए बालों को चेहरे से हटाया और उसकी आंखों से जैसे शौले निकल रहे थे। वो इस वक्त वाकई किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी और निहाल की इस बात ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। निहाल शाह, आई विल किल यू। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने जानबूझकर बाइक इतनी तेज चलाई, मेरा सारा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। तुम तो बचोगे नहीं मेरे हाथों से। ईशा ने अपना बैग उसकी तरफ मारा था, जो निहाल ने बड़ी महारत से कैच कर लिया था और उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी शोर शराबा की आवाज सुनकर रीनम भी अंदर से बाहर आ गई थी और उसने जैसे ही ईशा की वो हालत देखी, वो भी अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगी थी। हाय लईशु आपी, ये आपको रास्ते में कौन से जिन्नात चिमट गए थे जो आपका ये हाल कर दिया? रेनम की बात पर ईशा ने ऐसी उसे खूनी नजरों से घूरा था कि रेनम फौरन हंसी दबाते पीछे हट गई थी। तुम दोनों बहन भाई ना एक ही थाली के चट्टे पट्टे हो, मुझसे कोई बात ना करे और तुम ये मत समझना कि तुम जीत गए। इसका बदला मैं तुमसे ऐसा लूंगी ना कि तुम अपनी ये खटारा बाइक चलाना भूल जाओगे, याद रखना तुम। ईशा ने अपना बैग निहाल के हाथ से छीना और पांव पटकती तूफान की तरह अंदर की जानिब चली गई थी, जबकि पीछे निहाल और रेनम एक दूसरे को देखकर दोबारा हंस पड़े थे। निहाल के लिए आज का दिन बहुत शानदार साबित हुआ था। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर मौजूद ईशा की वो मजाक खेज तस्वीर देखी और मुस्कुराता अपने कमरे की जानिब चला गया। ईशा सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा लॉक करके शीशे के सामने खड़ी हुई तो अपनी हालत देखकर उसका अपना दिल भी एक लम्हे के लिए धक से रह गया। उसके बाल वाकई में घोंसले की तरह उलझे हुए थे और वो सीधा बाथरूम में घुस गई। ठंडे पानी की शॉवर ने उसके जिस्म की तपिश को तो कुछ कम कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में लगी आग अभी तक भड़क रही थी। वो किसी भी कीमत पर निहाल की उस हरकत को मुआफ करने वाली नहीं थी। शॉवर लेकर वो बाहर आई तो उसका हुलिया काफी हद तक दुरुस्त हो चुका था। उसने गीले बालों को तौलिए से खुश्क किया और बेड पर गिरकर छत को घूरने लगी। वो जानती थी कि निहाल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी उस स्याह रंग की हैवी बाइक है जिस पर वो इतना गुरूर करता है, और अगर उस बाइक को कुछ हो जाए तो निहाल की सारी अकड़ हवा हो जाएगी। यही सोचते उसके लबों पर खतरनाक सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने तहैया कर लिया था कि अब जो वो वार करेगी ना, वो सीधा निहाल की दुखती रग पर होगा। एक और हंसता मुस्कुराता दिन गुजर गया जिसमें घर के तमाम अफराद अपनी अपनी मसरूफियात में मगन थे और इन दोनों की शरारतें घर की रौनक बनी हुई थी। अगले दिन सुबह का वक्त था जब ईशा लाउंज की खिड़की से बाहर पोर्च की जानिब देख रही थी।
जब निहाल की चमकती हुई हैवी बाइक शान से खड़ी थी। आज दोपहर को निहाल की एक बहुत अहम रेस थी, जिसके लिए वो सुबह से ही बाइक की सफाई और ट्यूनिंग में लगा हुआ था, और अब वो नहाने के लिए अंदर गया हुआ था। ईशा की नजरें उस बाइक पर जमी हुई थी कि अचानक उसकी निगाह घर के मुलाजिम के छोटे बेटे सैफू पर पड़ी थी, जो हाथ में एक कपड़ा पकड़े पोर्च की सफाई कर रहा था। सैफू एक इंतहाई तेज और होशियार लड़का था, जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। ईशा के दिमाग की बत्ती फौरन से जली। वो दौड़कर कमरे में गई और वापस आकर उसने इधर उधर देखते सैफू को इशारे से अपने पास बुलाया। सैफू ने जल्दी से कपड़ा कंधे पर रखा और दौड़ता हुआ ईशा के पास खिड़की के करीब आ गया। जी ईशा बाजी, आपने बुलाया, मुझे कोई काम था क्या? सैफू ने मासूमियत से पूछा। तो ईशा ने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर 5-5 हज़ार के 3 कड़कड़ाते हुए नोट सैफू की आंखों के सामने लहराए, जिन्हें देखकर सैफू की आंखें बाहर को उबल आई थी। उसने इतने सारे पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। लो पकड़ो पैसे, पूरे 15,000 हैं और ये सब तुम्हारे हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और किसी को कानू कान भी खबर नहीं होनी चाहिए। बोलो, करोगे ना? ईशा ने नोटों को उसके हाथ में थमाते सरगोशी के से अंदाज में कहा। सैफू ने फौरन से पैसे जेब में ठूंसे और सीने पर हाथ मारते हुए बोला, आप हुक्म करे बाजी, सैफू आपके लिए जान भी दे सकता है, अब बस काम बताए, वो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। सैफू की उस मुस्तैदी पर ईशा की मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसने खिड़की से बाहर खड़ी निहाल की बाइक की तरफ इशारा किया। चलो फौरन से निहाल शाह की बाइक का टायर पंक्चर करके आओ, और पंक्चर ऐसा होना चाहिए कि बाइक 1 इंच भी आगे न बढ़ सके। और याद रखना, अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुमसे ही पैसे वापस दे दूंगी। ईशा ने सख्ती से हदायत करते हुए कहा। तो सैफू ने फौरन से हुक्म बजा लाते सर हिलाया और एक सुई हाथ में छुपाते दबे कदमों बाइक की जानी पड़ गया, जबकि ईशा खिड़की से पीछे हटकर लाउंज के सोफे पर आकर बैठ गई और बड़े सुकून से टीवी ऑन कर लिया। उसका दिल खुशी से नाच रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि जब निहाल होकर तैयार होकर अपनी रेस के लिए बाहर निकलेगा, हर बाइक का टायर पंक्चर देखेगा, तो उसके चेहरे के तासुरात देखने लायक होंगे और उसका आज की रेस में हिस्सा लेने का ख्वाब खाक में मिल जाएगा। उसकी इस खतरनाक साजिश का निहाल शाह को जरा भी अंदाजा नहीं था और वो बेखबर अपने कमरे में तैयार होने में मसरूफ था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और जब मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो सामने नानू को खड़े देखकर ईशा खुशी से उछल पड़ी। नानू की अचानक आमद ने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया था। जुबैदा बेगम और रेनम भी फौरन बाहर आ गई थी और सब नानू के गिर्द जमा हो गए थे। नानू कुछ दिन के लिए गांव गई हुई थी। उनके वापस आने से घर में एकदम से रौनक आ गई थी। सब उनसे गले मिल रहे थे और ईशा तो खुशी के मारे उनके साथ चिमट कर रह गई थी। कुछ देर बाद लाउंज में बैठे हंसी मजाक करते सब एक दूसरे के साथ बातें करने में मगन थे। कुछ देर बाद जुबैदा बेगम नानू के लिए चाय बना कर ले आई और किचन में चली गई, जबकि नानू अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। लाउंज में अब सिर्फ ईशा थी, जो कि खुशी खुशी उठकर किचन की जानिब जाने लगी ताकि ममानी की मदद कर सके, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां फर्श पर पानी गिरा हुआ था। उसके कदमों की रफ्तार तेज थी और जैसे उसका पांव उस गीले फर्श पर पड़ा, उसका तवाज़ुन बुरी तरह से बिगड़ गया और उसके मुंह से एक बेसाख्ता चीख निकली और वो तेजी से पीछे की जानिब गिरने लगी। ऐन उसी लम्हे निहाल अपने कमरे से बाहर निकला। उसने स्याह रंग की हाफ स्लीव शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी और वो अपनी रेस के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे जैसे ही ईशा को गिरते हुए देखा, उसके कदम खुद ब खुद बिजली की सी तेजी से आगे बढ़े और इससे पहले कि ईशा का सर जमीन से टकरा था, निहाल ने अपने मजबूत बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट कर उसे हवा में ही थाम लिया था और अपने दोनों हाथों से बेसाख्ता निहाल के कंधे पर रख दिए थे। उसने डरते डरते अपनी पलकें उठाई और सीधा निहाल की गहरी स्याह आंखों में देखा, जो इतने करीब से उसे ही देख रहा था। उन दोनों की निगाहें आपस में उलझ गई और इर्द गिर्द का वक्त जैसे थम सा गया। निहाल की धड़कनें इस अचानक गुर्बत पर बेतरतीब हो गई थी और ईशा का दिल भी सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। वो इस वक्त बिला का हैंडसम लग रहा था और ईशा की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। एक अनजानी सी कशिश ने उन दोनों को अपनी लपेट में ले लिया था। इस दौरान नानू फ्रेश होकर लाउंज में वापस आए तो उन दोनों को इस तरह एक दूसरे की आंखों में खोए हुए देखकर उनके कदम वहीं रुके। नानू की जहां दीदा आंखों ने एक ही पल में इन दोनों के दरमियान मौजूद
उस अनकही कशिश को भांप लिया था। उनके लबों पर एक इंतहाई पुरसकून और पसंदगी भरी मुस्कुराहट उभर आई थी, क्योंकि वो हमेशा से उन दोनों को एक साथ देखना चाहती थी। अरे बच्चा, ध्यान से चलो, नानू ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में टोका। तो निहाल और ईशा दोनों जैसे नींद से जागे थे, वे बुरी तरह से गिड़बड़ाकर एक दूसरे से दूर हुए थे। निहाल ने फौरन से गला खनखारते उसे सीधा खड़ा किया और अपने दिल की उस अजीब सी कैफियत को छुपाने के लिए हस्बे आदत तर्ज का सहारा लिया था। थोड़ा वजन कम कर लो बिलबतोड़ी, मेरे बाजू तोड़ने का इरादा था क्या? अपना आप संभाला नहीं जाता और चल पड़ती हूँ पूरे घर की बघर को सर पर उठाने। निहाल की इस बात पर ईशा ने निहाल को खूनी नजरों से घूरा और पांव पटकती वापस किचन की जानिब चली गई, जबकि जान नानो मुस्कुराती हुई सोफे पर आकर बैठ गई। उनके दिमाग में एक नया मंसूबा बनना शुरू हो चुका था, जिनका उन दोनों को जरा भी इल्म नहीं था। इस खूबसूरत मगर उलझे हुए एहसास को झटकता हुआ निहाल शाह अपने चेहरे पर वही पुराना रूप सजाए बाहर पोर्च की जानिब निकल गया, जहां उसकी जान से प्यारी हैवी बाइक खड़ी थी। आज उसकी एक बहुत अहम रेस थी और वो उसी के लिए तैयार होकर निकला था। मगर जैसे उसकी नजर बाइक के पिछले टायर पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए और माथे पर गुस्से से अनगिनत बल पड़ चुके थे। टायर बुरी तरह से जमीन में धंसा हुआ था और उसकी सारी हवा निकल चुकी थी। वो गुस्से से आगे बढ़ा और झुककर बाइक का जायजा लिया, तो देखा कि किसी ने जानबूझकर किसी मोटी या कील को बेदर्दी से कई बार टायर में खोपा था, जिससे न सिर्फ टायर की हवा निकल गई थी, बल्कि अंदर की ट्यूब भी बुरी तरह से फट चुकी थी और वो बाइक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। निहाल का पारा सातवें आसमान को छूने लगा। आज की रेस उसके लिए बहुत अहम थी और उसने अपने दोस्तों के साथ बड़ी शर्तें लगा रखी थी। ऐन वक्त पर अपनी बाइक का ये हशर देखकर उसका फोन खोलने लगा। उसने मुट्ठियां भींचते गिर्द नजर दोहराई तो उसे पोर्च के कोने में पानी का पाइप के पीछे छुपा सैफू नजर आया, जो कि डर में मारे कांप रहा था और वहां चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा था। निहाल ने 2 कदम उठाए और सैफू को बाजू से पकड़कर सख्ती से अपनी जानिब खींचा। किसने ये किया? बाइक का हाल? तुमने तुमने इसे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। निहाल की गर्जदार आवाज सुनकर सैफू की जान निकल गई और वो तोते की तरह बोलने लगा, भैया मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो ईशा बाजी ने 15,000 रुपए दिए थे और कहा था कि एक मोटी सुई लेकर इसके टायर में इतनी बार खोपना कि इसका कचूमर निकल जाए। सैफू ने रोते हुए जेब से वो नोट निकालकर निहाल के सामने कर दिए। ईशा का नाम सुनते निहाल की आंखों में जैसे खून उतर आया। वो समझ गया था कि ये सब उस चुड़ैल की कारस्तानी है। उसे सेवू को झटकते तू छोड़ा और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसका दिल कर रहा था कि अभी अंदर जाकर उस लड़की का मुंह तोड़ दे कि उसकी वजह से आज उसकी इतनी अहम रेस में वो हिस्सा नहीं ले पाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में इंतहाई खतरनाक ख्याल आया, जिसने उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। ठीक है सेफू, जो तुमने किया मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें 15 नहीं बल्कि पूरे 20,000 रुपए दूंगा। निहाल ने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए सैफू की आंखों के सामने लहराए, तो सैफू की आंखों में आंसुओं के बावजूद एक बार फिर से लालच की चमक आ चुकी थी। भैया आप हुक्म करें, मैं सब करूंगा, बस मुझे मारना मत। सैफू ने जल्दी से हामी भर ली थी। निहाल ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद तेज कदमों से बाहर की जानिब निकल गया। काफी देर बाद जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ा सा गत्ते का डिब्बा था, जिसमें टेप लगी हुई थी और अंदर से अजीब सी खड़खड़ाहट और सरसराहट की आवाजें आ रही थी। इसमें क्या है भैया? सैफू ने घबराते हुए पूछा, तो हाँ निहाल ने उसे सख्ती से घूरा था। तुम सिर्फ ना अपने काम से मतलब रखो। ये डब्बा चुपके से जाकर ईशा के कमरे में रखो और बाहर आने से पहले इसके ऊपर लगी हुई टेप को पूरी तरह से उतार देना। याद रखना, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया या तुमने कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निहाल ने वो डिब्बा सैफू के हाथ में दिया और उसे 20,000 रुपए दिए। सैफू ने खुशी खुशी पैसे पकड़े और वो भारी डिब्बा उठाकर दबे कदमों अंदर की जानिब चला गया। दूसरी तरफ ईशा लाउंज में सबके साथ मिलकर चाय पीकर अपने कमरे में चली गई थी और अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। उसे लग रहा था कि निहाल अब तक बाइक देखकर रो रहा होगा। सैफू ने होशियारी से उसे ईशा के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला और डिब्बा बेड के बिल्कुल करीब रखकर उसके ऊपर लगी टेप उतार दी थी और वो फौरन वहां से गायब हो गया।
باہر लाउंज के करीब खड़ा निहाल बाजू बांधे इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रहा था, जब अंदर से ईशा के दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने वाली थी। वो जानता था कि डिब्बे में मौजूद वो 10 मोटे ताजे और काले चूल्हे जब बाहर निकलकर पूरे कमरे में ऊधम मचाएंगे तो उसका क्या असर होगा। ईशा शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी और हल्की आवाज में गुनगुना रही थी कि अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। उसने लापरवाही से नीचे देखा और अगले ही लम्हे उसकी आंखें खौफ और दहशत से पूरी तरह से फैल गईं। जमीन पर एक नहीं बल्कि 3-4 मोटे ताजे और इंतहाई भयानक काले चूहे इधर उधर घूम रहे थे और वो चूहे उसके बिस्तर पर चढ़ चुके थे। ईशा का दिल जैसे धक से रह गया। ये चूहे नहीं बल्कि पूरे सांड लग रहे थे, जिन्हें देखकर ईशा की जान निकल गई थी। उसे तो चूहों से वैसे ही बेतहाशा डर लगता था और इतने सारे इतने बड़े चूहे चूहे एक साथ देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। एक बड़ा सा काला चूहा बिल्कुल तेजी से भागता हुआ आया और उसके हलक से खौफनाक चीख निकली। वो पागलों की तरह दरवाजे की जानिब भागी। निहाल जो कब से उसके चीखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो मुस्कुराता उसके कमरे की जानिब ही आ रहा था कि दरवाजा जोर से खुला और ईशा अंधाधुंध चीखती बाहर निकली और सीधी निहाल के सीने से जा टकराई। उन दोनों का इंतहाई बुरी तरह से तसादुम हुआ और ईशा ने डर के मारे बेसाख्ता अपने दोनों हाथ निहाल की शर्ट में फंसा लिए थे और उसे सख्ती से खुद से चिपका लिया था। प्लीज मुझे बचा ले, अंदर काले बड़े बड़े चूहे हैं, मुझे ऊपर चढ़ने लगे थे मेरे, प्लीज मुझे बचा ले। ईशा रोते हुए हाँफते हुए निहाल के सीने में मुंह छुपाए खड़ी थी। उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। उसकी उंगलियां निहाल की शर्ट को मुट्ठियों में भींचे हुए थी, जबकि निहाल जो सिर्फ उसे डराना चाहता था, वो इस अचानक होने वाले हमले और ईशा की उस गुर्बत पर एक लम्हे के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया था। ईशा की भीनी भीनी खुशबू और उसकी धड़कती हुई सांसें निहाल के हवासों पर सहर तारी कर रही थी। उसने बेसाख्ता अपने दोनों बाजू ईशा के गिर्द लपेट लिए थे और उसे खुद से लगाकर जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। वो भूल गया था कि ये वही लड़की है जिससे वो बदला ले रहा था। उस वक्त उसे सिर्फ एक अनजाना सा सुकून महसूस हो रहा था। उन दोनों की इस हालत और ईशा की चीखों की आवाज सुनकर नानो, ममानी और रेनम सब घबरा कर वहां पहुंचे थे और उन्हें इस तरह एक दूसरे के गले लगे देखकर हैरान रह गए थे। और फिर जब रेनम ने कमरे के अंदर मोटे ताजे चूहों को भागते देखा तो उसकी और ममानी की बैक वक्त हंसी छूट गई थी। सबकी हंसी की आवाज सुनकर ईशा को होश आया और उसने झटके से खुद को निहाल से दूर किया। उसका चेहरा लाल हो रहा था और निहाल भी शहर से बाहर निकल आया था। वो ईशा को देख रहा था जिसकी आंखों में आंसू थे और सांसें तेज थी। आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर निहाल शाह, लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करते हुए, ईशा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तो हाँ, निहाल ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसे दीवार के साथ पेन करते अपनी गहरी नजरों से उसे देखा था। और जो तुमने किया उस पर तो तुम्हें फूलों की माला पहनानी चाहिए ना। निहाल की आवाज धीमी मगर इंतहाई काटदार थी। उन दोनों के चेहरे का दरमियानी फासला बहुत कम रह गया था और लाउंज में खड़े सब लोग उन दोनों लड़ाके त्यारों को हैरत और मुस्कुराहट से देख रहे थे। तुमने मेरी बाइक के साथ जो किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी, करनानी चुड़ैल। निहाल ने मजीद तनकते हुए कहा। मिस्टर निहाल, जितना आपने मुझ पर जुल्म किया है ना, अब करीब आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ईशा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला था, लेकिन निहाल अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और मुस्कुराता रहा। उसकी वो फातिहाना मुस्कुराहट ईशा को अंदर तक जला रही थी। दोनों कजन थे, लेकिन मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। उनके दरमियान इस नफरत और इंतकाम के पीछे जो मोहब्बत और कशिश जन्म ले रही थी, वो इन दोनों की समझ से बालातर थी। नानो इन दोनों को बड़ी गहरी नजरों से देख रही थी। ईशा का गुस्सा अपने अरूज पर पहुंच चुका था। वो रोते हुए और गुस्से से हाँफते हुए निहाल को मारने के लिए आगे बढ़ी, जबकि निहाल भी अपनी बाइक का बदला लेने के बाद किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो दोनों जंगली बिल्लियां बने हुए थे। रेनम और ममानी उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी आवाजें इस शोर में दबकर रह गई थी। ईशा के बाल बिखरे हुए थे और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसका वो प्यारा सा गुलाबी लिबास भी शिकन आलूद हो चुका था। तुमने मेरे कमरे का जो हशर किया है ना मिस्टर निहाल शाह, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम देखना, आज रात मैं तुम्हारे कमरे में ना सांप बिच्छू लाकर छोड़ूंगी, ताकि तुम्हें पता चले कि डर क्या होता है।
ईशा ने रोते हुए और चिल्लाते हुए पास पड़ा कुशन उठाकर जोर से निहाल की जाने मारा था, जो निहाल ने बड़ी महारत से पकड़ लिया था। और उसके चेहरे पर वही दिल जला देने वाली तंजिया मुस्कुराहट थी जो ईशा को अंदर तक जला रही थी। शौक से लव जुड़े, वैसे भी तुम जैसी बिल बतोड़ी के रिश्तेदार तो सांप और बिच्छू ही हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे कमरे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अगली बार चूहे नहीं बल्कि असल मगरमच्छ लाकर तुम्हारे बेड पर बिठाऊंगा। निहाल ने भी उसी तेजी से जवाब दिया। उन दोनों की इस लड़ाई को शायद कभी खत्म ना होना था। अगर ऐन इस वक्त नानी अपनी बारोब आवाज में उनके दोनों के दरमियान आती, बस बहुत हो गई तुम दोनों की ये जंग, अब वक्त आ गया है कि इस जंग बंदी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। नानों की कर्जदार आवाज सुनकर वो दोनों जो एक दूसरे पर झपटने वाले थे वहीं रुक गए और हैरत से नानों की जानिब देखने लगे। नानू, मेरा रूम इनकी वजह से गंदा हुआ है। इन्होंने मेरे कमरे में इतने मोटे मोटे चूहे छोड़े। इन्हें बोले कि अभी मेरा कमरा साफ करवाएं वरना वाकई इनके कमरे में सांप और बिच्छू लाकर छोड़ दूंगी। ईशा ने नानों के पास रुककर रोते हुए शिकायत लगाई और बच्चों की तरह पैर पटकने लगी। नानों ने बड़े प्यार और शफकत से ईशा के सर पर हाथ रखा और उसके आंसू साफ किए, मगर उनके अगले ही अल्फाज ने लाउंज में मौजूद हर शख्स पर जैसे बिजली गिराती थी। ना मेरी बच्ची, ना, ये गजब ना करना। तुमने खुद हमेशा इसी कमरे में रहना है। अपने ही कमरे में कोई सांप बिच्छू छोड़ता है भला? नानू की बात सुनकर ईशा की रोती हुई आवाज एकदम से हलक में अटक गई और उसने हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें चिपकाते नानू को देखा, जबकि दूसरी तरफ खड़ा निहाल, जो अभी तक ईशा को चिढ़ा रहा था, उसकी मुस्कुराहट भी होंठों पर जम गई थी और उसने नासमझी से अपनी दादी की जानिब देखा। जुबैदा, कल ही शकीला को बुलाओ, इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब मुझसे इनकी ना ये रोज रोज की लड़ाइयां और दुश्मनी नहीं देखी जाती। वैसे भी अब वक्त आ गया है कि हम अपनी अमानत को अपने घर ले आएं। नानो ने जुबैदा बेगम की जानिब देखते हुए एक हतमी फैसला सुनाया था, जिसे सुनकर ईशा और निहाल दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। व्हाट? दादू, ये आप क्या बोल रही हैं? नो, नेवर। मैं इस चुड़ैल से शादी करूंगा। मेरा दिमाग खराब है क्या? निहाल ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा था और अपने बालों में बेबसी से हाथ फेरा था। ईशा का भी यही हाल था। वो तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। नानो, आप मजाक कर रही हैं ना? मैं उस जंगली इंसान से शादी करूंगी? इससे तो बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी कंवारी रह लूं। ईशा ने भी अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए शदीद एहतजाज किया। जुबैदा बेगम जो ये सब सुन रही थी वो भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि नानो का ये फैसला अचानक नहीं था। उन दोनों की पैदाइश के वक्त ही खानदान के बड़ों ने उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया था और ये बात सिर्फ खानदान के बड़े ही जानते थे, मगर उन दोनों बच्चों को इस बात की कभी खबर ही ना होने दी गई। और अब नानो की इस अचानक इंकशाफ ने लाउंज में एक नया भौंचाल खड़ा कर दिया था। तुम दोनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों का निकाह बचपन में ही हो चुका है। अब तो रुखसती होना ही बाकी है बस। नानो के इस इंकशाफ पर जैसे दोनों के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दोनों एक दूसरे को ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। वो किसी भी सूरत इस फैसले को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद के चंद घंटे उस घर के लिए किसी मैदान जंग से कम नहीं थे। निहाल और ईशा दोनों में से एक भी जान मारने को तैयार नहीं था। एक अगर आग था तो दूसरा भी पूरा आतिश फशा था और उस वक्त दोनों ही फटने के करीब थे। निहाल ने अपने बाबा को फोन करके सारा घर सर पे उठा लिया था और ईशा ने अपनी मामा को बुलाकर रोने धोने का प्रोग्राम शुरू कर दिया था। मैंने कह दिया ना कि मैं ये शादी नहीं मानता। बचपन की बातें आज के दौर में क्या ही अहमियत रखती है। बाबा, आप दादू को समझाएं, मैं इस लड़की के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। ये तो मेरा जीना हराम कर देगी। मेरी बाइक का जो इसने हशर किया ना वो आपके सामने है। निहाल अपने बाबा के सामने खड़ा शदीद गुस्से में हाथ हिला हिला कर दलाइल दे रहा था, मगर उसके बाबे भी नानो के फैसले के आगे सर झुकाए बैठे थे। दूसरी तरफ ईशा अपनी मामा के गले लगकर रो रही थी। मामा, आप नानो से कहे ना कि ऐसा जुल्म ना करे मुझ पर। मैं इसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती। ये तो एक नंबर का पागल इंसान है। इसने मुझे स्टोर में बंद किया, मेरे कमरे में चूहे छोड़े। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? ईशा की हिचकियां बंद हो गई थी, मगर यहाँ कोई उन दोनों की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। खानदान के तमाम बड़े इकट्ठे हो चुके थे और सबने नानो के फैसले के सामने सर तस्लीम में खम कर दिया था।
किसी को भी उन दोनों के शदीद एहतजाज और गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि ये दोनों अंदर से एक दूसरे के लिए कितने हसास हैं और इनकी लड़ाइयों में भी अपनाई छुपी हुई है। वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे और एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते थे। बड़ों की भी यही ख्वाहिश थी कि उन दोनों के गुस्से को मजीद हवा दे दी थी। वो दोनों अपनी जगह पर खड़े एक दूसरे को फोनी नजरों से घूर रहे थे और दिल ही दिल में एक दूसरे से बदला लेने की नई तरकीबें सोच रहे थे। जब नानू ने देखा कि दोनों लड़ाके त्यारे किसी भी तरह हथियार डालने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपना आखिरी और सबसे कारी वार करने का फैसला किया। वो आहिस्ता से चलती उन दोनों के दरमियान आके खड़ी हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं नहीं चाहती कि आने वाले वक्त में तुम दोनों मजीद दूर हो। मुझे तुम दोनों बहुत अजीज हो और जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो ना, मुझे बहुत दुख होता है। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कल मैं तुम्हारे दरमियान हूँ या ना हूँ। बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अपने इन दोनों बच्चों को एक होते देख लूं। क्या तुम दोनों मुझ बूढ़ी जान को इतनी सी खुशी नहीं दे सकते? नानू की भरी हुई आवाज और आंखों से गिरते आंसुओं ने एक ही पल में वहां मौजूद सब लोगों के दिलों को पिघला दिया था। निहाल जो अभी तक गुस्से से फनकार रहा था, दादू के आंसू देखकर उसका गुस्सा एकदम से झाग की तरह बैठ गया। उसे जल्दी से आगे बढ़कर उनके आंसू साफ किए थे और ईशा भी रोते हुए नानू के गले लग गई थी। दादू प्लीज आप रोए मत, आप जानती है ना कि मैं आपके आंसू नहीं देख सकता। आप जो कहेंगी मैं करूंगा, बस आप इस तरह मरने की बातें मत करें। निहाल ने हार मानते हुए सर झुका लिया था और ईशा ने भी हिचकियां लेते नानू के कंधे पर सर रख दिया था। नानू, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं कोई आपकी बात नहीं टालूंगी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। उन दोनों के हथियार डालते ही लाउंज का बोझल माहौल एकदम से खुशियों और मुबारकबादों में बदल गया। नानी के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। उन्होंने इन दोनों को एक साथ अपने गले लगा लिया था, जबकि निहाल और ईशा दोनों एक दूसरे को अब भी तिरछी नजरों से घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो कि इस जंग का फैसला अभी बाकी है। सब शादी की तैयारियों में लग गए थे और ईशा को फौरन ही अपनी मामा के पास वापस अपने शहर जाना पड़ा था, क्योंकि रुखसती का दिन बहुत करीब तय पाया था और तैयारियां बहुत ज्यादा थी। ईशा के जाते ही वो घर जो कल तक उसकी हंसी और शोखियों से गूंजता था, आज बहुत वीरान और खामोश सा था। निहाल जो उस चुड़ैल के जाने पर बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब वो सुकून की नींद सोएगा। उसे चंद ही दिनों में अंदाजा हो गया कि उसका वो सारा सुकून तो ईशा के साथ उस घर से ही रुखसत हो चुका है। वो रात को देर तक अपनी नई बाइक पर वक्त गुजारने के बाद जब घर आता तो उसे मेन गेट पर कोई लड़ने वाला नहीं मिलता था। कभी अपने मोबाइल की गैलरी में ईशा की वो बिखरे बालों वाली तस्वीर देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा देता था और उसके दिल में मीठी सी खसक उठने लगती थी, जो कि इस बात का सबूत थी कि वो दिल हार बैठा था, मगर मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ ईशा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अपने घर में शादी की तैयारियों में मसरूफ तो थी, मगर उसका ध्यान भी निहाल की तरफ था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि कब उसकी नफरत और गुस्से ने खूबसूरत से एहसास का रूप धार लिया था। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। मेहंदी की रात बहुत धूमधाम से मनाई गई थी। हर तरफ पीले और सब्ज रंगों की बहार थी। ढोलक की थाप पर लड़कियां गीत गा रही थी और अनमते को खुशी के मारे पूरे घर को सर पे उठाया हुआ था। ईशा ने पीले रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था और उसके हाथों पर निहाल के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। जब निहाल सब्ज रंग के कुर्ते में अपनी कजिन्स के साथ अंदर दाखिल हुई तो एक लम्हे के लिए उसकी नजरें सीधी ईशा पर जाकर टिक गई थी और वो पलके झपकना ही भूल गई थी। ईशा ने भी चोरी छुपे उसे देखा और दोनों की नजरें जब भी टकराती एक अजीब सी बिजली गूंज जाती थी, लेकिन उनकी वो रवायती अकड़ भी बरकरार थी। बारात का दिन भी बहुत जल्द आ गया था। घर को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। निहाल स्याह रंग की शेरवानी में मलबूस सर पर कुल्ला सजाए बिल्कुल किसी बादशाह की तरह लग रहा था और जब सुर्ख जोड़े में मलबूस ईशा को स्टेज पर लाया गया तो सुर्ख दुपट्टे में सिमटी हुई हया और खूबसूरती का एक शाहकार लग रही थी, मगर उन दोनों के जहनों में अभी भी जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने के नत नए मंसूबे चल रहे थे। स्टेज पर बैठते ही जब निहाल ने उसे तुरछी नजरों से देखा
تو عشا نے بھی اسے خونی نظروں سے گھور کر اپنا رخ موڑ لیا۔ کیمرے کی چمکتی فلیش لائٹس اور فوٹوگرافر کی مسکرانے کی فرمائشیں، اسٹیج پہ بیٹھے دلہن بظاہر تو بہت خوشگوار تصویریں بنوا رہے تھے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ تھوڑا سا اور قریب ہو جائے سر اور میڈم ہم ان کے کندھے پر سر رکھ لیں۔ فوٹوگرافر کی اس فرمائش پر عشا نے دانت پیستے نہال کو ہلکا سا دھکا دیا، جس کے جواب میں نہال نے بھی کیمرے کی طرف مسکراتے ہوئے عشا کی پسلیوں میں اپنی کوہنی سے ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے عشا کے ہونٹوں پر ایک دبی سی چیخ نکلی، جسے اس نے کھانسنے کے سے بہانے سے چھپا لیا تھا۔ تو میں تمہیں آج رات نا اچھے سے بتاتا ہوں کمرے میں نہال شاہ سے پنگا کتنا مہنگا پڑنے والا ہے تمہیں، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہال نے دانتوں کے درمیان بمشکل مسکراہٹ دباتے دھمکی دی تھی، جس پر عشا نے بھی اپنی آنکھوں میں موجود غصے کو چھپاتے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، اسی طنزیہ انداز میں جواب دیا تھا، جتنا آپ نے مجھے تنگ کیا ہے نا اور مجھ پر ظلم ڈھائے ہیں، اب آنا ذرا رات کو کمرے میں بھی اچھے سے سہاگ رات مناؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ عشا کی اس دھمکی پر نہال نے ایک بہت اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر بھی ایک دلکش مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ ان دونوں کا یہ جنگی فوٹو شوٹ مکمل ہو چکا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ ان کی اس خوبصورت جوڑی کی نظریں اتار رہے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور گھر کے تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جب عشا کو تمام روایتی رسموں کے بعد نہال کے کمرے میں لایا گیا، کمرے کو سرخ گلابوں موتیوں کی لڑیوں سے بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا، جس کی بھینی خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ مگر عشا کے دماغ میں اس وقت کوئی رومانوی خیال نہیں، بلکہ نہال کی وہ دھمکی گونج رہی جو اس نے اسٹیج پر دی تھی۔ جیسے ہی سب لڑکیاں اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلی تو عشا نے فوراً اپنے باہری لہنگے کو سمیٹا اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ کر اسے اندر سے لاک کر دیا تھا۔ اسے اس بات پر انتہائی سکون مل رہا تھا کہ اب نہال باہر کھڑا دروازہ پیٹتا رہے گا اور وہ آرام سے سو جائے۔ یہ سوچتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بھاری زیورات اتارنے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ اس کا یہ وار بالکل نشانے پر لگا ہے اور آج رات نہال کو باہر لاؤنج میں ہی سونا پڑے گا۔ دوسری طرف نہال شاہ اپنے دوستوں اور کزن سے جان چھڑا کر جب تھکے ہارے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو ہینڈل گھمانے پر اسے اندازہ ہوا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری، کیونکہ وہ اس لڑکی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے بڑے سکون سے وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کسی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد رینم وہاں آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شریر سی ہنسی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے پوری طرح سے تیار ہو کر آئی ہے۔ میری بہن زندہ باد، لاؤ جلدی سے چابیاں دو مجھے، نہال نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو رینم نے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابیاں نکال کر نہال کے ہاتھ میں رکھ دی اور بیگ کا لفافہ نہال کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے بولی، بھیا میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کی بل بتوڑی جانے، گڈ نائٹ۔ رینم ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور نہال نے گہری سانس لیتے چابی کو دروازے کے لاک میں گھمایا۔ نہال نے انتہائی خاموشی سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بے ساختہ بند ہو گئی تھی اور اسے فوراً سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ عشا جس خوش فہمی میں تھی کہ دروازہ لاک ہے اور کوئی اندر نہیں آ سکتا، وہ کمرے کے بالکل درمیان میں کھڑے اپنے بھاری دوپٹے اور بے تحاشا پنڈوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی کمر کی ڈوری کھلی ہوئی تھی۔ نہال کے قدموں کی آہٹ اور دروازہ کھلنے کی آواز پر عشا نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو نہال کو اندر کھڑے پا کر اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سینے پر رکھا اور آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تو پاگل ہو گیا؟ اگر کپڑے چینج کرنے تھے تو ڈریسنگ روم میں جاؤ نا، کیوں کمرے میں بیچ میں کھڑے ہو کر کون کپڑے بدلتا ہے؟ نہال نے آنکھیں بند کرتے ہوئے غصے میں کہا، جس پر عشا کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ میں نے تو دروازہ لاک کیا تھا، باہر جائے ابھی۔ عشا نے چلاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش شروع کر دی تھی، کیونکہ اس کا بھاری لہنگا اس کے پیروں میں الجھ رہا تھا۔ میرا کمرہ ہے، میں جہاں بھی آؤں، تم ہوتی کون ہو مجھے باہر نکالنے والی؟ ہاں؟ نہال ابھی اپنی بات مکمل کر کے پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک
پورے گھر کی لائٹ چلی گئی اور کمرے میں گھپا اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور عشا جسے بچپن سے ہی اندھیرے سے بے تحاشا ڈر لگتا تھا، اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کا سارا غصہ، ساری اکڑ ایک لمحے میں ہوا ہو گئی تھی۔ نہال! اس کے حلق سے خوف زدہ سی دبی دبی چیخ نکلی اور وہ اندھیرے میں کچھ بھی دیکھے سمجھے بغیر اندھا دھند آگے کی جانب بھاگی اور سیدھی نہال کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ نہال جو بھی اندھیرے کا عادی ہونے کی کوشش کر ہی رہا تھا، وہ اس اچانک حملے اور عشا کی اس قدر قریب آ جانے پر ایک لمحے کے لیے بری طرح سے تھک رہ گیا۔ عشا نے ڈر کے مارے اپنے دونوں بازو نہال کے گرد لپیٹ لی اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کی گرفت نہال کی شیروانی پر بہت سخت تھی۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے، اور چون کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عشا کی آواز میں کپکپاہٹ اور معصومیت تھی جو کہ نہال کے دل کی تاروں کو بری طرح سے چھیر گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے تک اس سے لڑنے مرنے کو تیار تھی، اس وقت ایک چھوٹی سی بچی کی طرح اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ نہال کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش مسکان سجی اور اس نے بے ساختہ اپنے مضبوط بازو عشا کے گرد لپیٹ کر اسے خود میں مکمل طور پر قید کر لیا تھا۔ اس کی بھینی بھینی خوشبو اور اس کی دھڑکتی ہوئی دھڑکنیں نہال کے حواسوں پر جادو کر رہی تھی۔ آج کے بعد تمہیں اندھیرے سے نہیں، مجھ سے ڈر لگے گا، نہال نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، جس کی تپش نے عشا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ پہلے تو عشا اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، مگر جب اسے نہال کی اس گہری سرگوشی اور اس کے مضبوط حصار کا احساس ہوا تو وہ بری طرح سے شرما گئی اور اسے اپنی اس حرکت پر شدید شرمندگی ہونے لگی۔ اسے جلدی سے خود کو نہال کی باہوں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہال نے اسے پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں، کیا کر رہے آپ؟ عشا نے اس کے سینے پر ہلکے سے مکے مارتے احتجاج کیا، مگر اس کی آواز میں وہ پرانی سختی نہیں بلکہ حیا چھپی ہوئی تھی جو نہال کو اور بھی دیوانہ بنا رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں خود چلنے کی، ساری زندگی تمہیں میرے ہی قدموں میں قدم ملا کر چلنا ہے۔ نہال نے اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اس گھپ اندھیرے میں ان کے درمیان حل وہ ساری نفرت، وہ سارا غصہ، ہونا کی دیواریں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھی۔ نہال نے انتہائی نرمی سے عشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ عشا کی کانپتی پلکوں اور جھکی ہوئی نگاہوں میں اب ڈر کی جگہ شرم و حیا تھی۔ نہال نے اس کے الجھے بالوں کو کان کے پیچھے اٹسا اور انتہائی محبت سے اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھے گویا ان تمام اذیتوں اور لڑائیوں کا ازالہ کر دیا تھا جو کہ اب تک وہ سہتے آئے تھے۔ وہ رات ان کے لیے ایک ایسی خوبصورت انوکھی دنیا کا دروا کر گئی تھی جس کا تصور انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔ اگلی صبح نے جب اپنی روشنی سے سارے کمرے کو منور کیا تو ایک نیا اور خوبصورت دن ان کا منتظر تھا، مگر ان کی وہ پرانی عادتیں اتنی جلدی کہاں جانے والی تھی۔ عشا نے آنکھیں ملتے ہی خود کو بیڈ پر اکیلا پایا تو جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے یاد ہے کہ اسے نہانے جانا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم کی جانب بھاگی، مگر اسی وقت نہال بھی تولیہ کندھے پر رکھے باتھ روم کی طرف سے آ رہا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دروازے پر پہنچے اور ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ پہلے میں جاؤں گی، باتھ روم مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ بعد میں جائیے گا، عشا نے دروازے کا ہینڈل پکڑتے اپنی اسی پرانے اور دبنگ انداز میں کہا جس پر نہال نے اپنی بھویں اچکا کر اسے دیکھا تھا اور مسکرایا تھا۔ میں پہلے آئی ہوں تو میں ہی جاؤں گا، تم آرام سے بعد میں چلی جانا، ویسے بھی رات پر جاگنے کے بعد تمہارا حلیہ تو پہلے ہی بالبتوری جیسا ہے، نہانے سے کون سا فرق پڑ جائے گا۔ نہال کے اس طنز پر عشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے غصے سے پیر پٹکتے دروازے کو دھکا دیا کہ اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر نہال تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا تھا۔ جیسے عشا نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، نہال نے پھرتی سے اندر گھس گئے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ آپ باہر جائیے، کیا بدتمیزی ہے، میں پہلے آئی ہوں۔ عشا نے چلاتے اسے باہر دھکیلنے کی کوشش کی، مگر نہال نے ہنستے اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ عشا کے گرد دیوار پر ٹکے ہوئے تھے، اس کی گہری آنکھوں میں بے پناہ محبت کی چمک تھی۔ عشا کی دھڑکنیں اس اچانک قربت پر ایک بار پھر سے بے قابو ہونے لگی تھی۔ اس نے نظریں چرانے کی کوشش کی،
मगर निहाल अपनी उंगली की पूरब से उसकी ठोड़ी को छूते उसका चेहरा अपनी तरफ कर गया था। वो मुस्कुराते उसके बिल्कुल करीब झुका और उसके कान के पास मसूरकन आवाज में सरगोशी की थी, जब तक तुम ये नहीं मान लेती कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी हमनवा, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। निहाल के उस दिलनशी अंदाज पर ईशा के चेहरे का सारा गुस्सा पिघल कर मुस्कुराहट में ढल गया था। उसने हार मानते हुए अपनी नजरें झुका ली थी और फिर इस बात में सर हिला दिया था और निहाल ने हंसते हुए उसके माथे पर प्यार किया था। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगली ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ जल्द फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।